Hello friends, myself Jaran Thakur. Today learn standard 9th English medium subject maths. Now start a new chapter number 12. Chapter name is Heron's formula. In a Heron's formula, we in an 8 or 9 standard, generally we have to find out area of triangle 1/2 base into altitude. Triangle ABC, area of triangle ABC is equal to 1/2 base into altitude. Area of triangle ABC 1/2 base into altitude. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. जनरली आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड ये इक्वेशन यूज करते हैं. बट इन दिस इक्वेशन लिमिटेशन इज एल्टीट्यूड इज कंपल्सरी फॉर अनदर ट्राइंगल. सपोज राइट एंगल ट्राइंगल, सो सेम वे 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. अनदर ट्राइंगल इज equilateral triangle. Equilateral triangle, it means all sides are equal. So equation of equilateral triangle, √3/4 into side square. But without altitude, not right angle triangle or not a equilateral triangle. So how to find area of triangle for using only sides? So mathematician name is Heron's, and he was suggested a Heron's formula for find the area of triangle by using sides of triangle. So using triangle side find area of triangle. So what is Heron formula? Area of triangle, and the mathematician name is Heron's. So name of formula is Heron formula. What is Heron formula? So area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b and s minus c. So Heron's formula s under root s minus a multiply by s minus b and s minus c. S is a semi perimeter of triangle. Suppose 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. So 3 sides are given. By using these 3 sides find area of triangle. So using Heron's formula. So now understand what is S, A, B and C. So small b and small c are the sides of triangle. Are a side of ट्राइंगल. सो यू नो, अब आपको समझ में आ गया होगा ए बी सी डी यहाँ पे क्या है. तो ए बी सी यहाँ पे साइड ऑफ ट्राइंगल है. नाउ व्हाट इज एस? सो एस इज अ सेमी पेरीमीटर of triangle.
So semi perimeters of triangle. Now what is perimeter? Perimeter means addition of all side A, B and C. So semi perimeter is equal to perimeter का half, यानी कि A B C addition divided by 2 is called semi perimeters. So semi perimeters of triangle, it means perimeter का half, यानी कि perimeter means addition of all side and semi it means perimeter divided by 2. So S is equal to A plus B plus C divided by 2. तो ये आपका सेमी पेरीमीटर हो गया. तो अब हेरन्स फॉर्मूला में आपको ऑल अननोन टर्म से आप नोन हो गए. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी मीन्स साइड्स, इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए बी सी यानी कि 3 साइड एनी वन आप ले सकते हो. सपोज ऐसे तो आपको लेना हो जनरली, तो ए के सामने अपोजिट, ए का अपोजिट स्मॉल ए, बी का अपोजिट और सी का अपोजिट, इस तरह से ले सकते हो. या तो फिर डायरेक्टली ए बी सी रैंडमली आप ले सकते हो, ए बी सी. एंड सेमी पेरीमीटर एस, इट मीन्स पेरीमीटर का हाफ यानी कि ऑल साइड का एडिशन डिवाइड बाई 2, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर. नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, exercise 12.1, question number 1. So first in a school, a traffic signal board indicating school ahead in a equilateral triangle with side A. Find the area of single board using Heron's formula. Its perimeter is 180 centimeter. What will be area of signal board? So here a signal board is an equilateral triangle with side A and perimeter is 180 centimeter. Therefore S, it means semi perimeter, is equal to 180 divided by 2, it means 90 centimeter. सेमी पेरीमीटर इज कॉल्ड 90 सेंटीमीटर. तो एस की वैल्यू मिल गई. नाउ एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. with triangle with side A. So first of all find all side. We using Heron's formula, this equation is here now. So sides and semi perimeter and area, all value can be find out. So first of all semi perimeter S is equal to A plus B plus C divided by 2. All sides are equal, therefore A plus A plus A divided by 2. A plus A, that means 3A divided by 2 is a value of S. Now फर्स्ट ब्रैकेट s की वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड करना है s माइनस ए, बिकॉज हियर s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी. देयरफॉर s माइनस ए, so s minus a is equal to, s means 3a by 2 minus a, therefore taking LCM, therefore multiply by 2, it means 3a minus
2a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2। ये आंसर मिला आपको s माइनस ए की वैल्यू मिल गई। फिर से एक बार एक ए के नीचे यहाँ पे 1 समझ लो, 2 और 1 कैल्शियम 2 आ गया तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर 3a माइनस 2a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 is our answer, value of SA. Now in similar way S minus B and S minus C all are equal, therefore S minus B equal to S minus A equal to S minus C is equal to A by 2। यही आंसर आएगा सभी के लिए। Now find area of Heron's formula. It means S minus A, S minus B, S minus C. Value of S is equal to 3 by 2a into a by 2 1 half a into 1 half a. Therefore 3 into a raised to 4, 1 2 3 4, 2 into 2 into 2 into 2, it means 16 under root. Now under root 3 as it is, a raised to 4, therefore a square out of square और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 4। तो आंसर मिला हमें √3/4 इंटू a, इट मीन्स साइड स्क्वेयर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। Next, a plus b plus c is equal to 60 centimeter because all sides are equal and perimeter are given. Perimeter is 180, therefore 60 plus 60 plus 60 180. Now area of triangle ABC. ABC, it means area ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने इक्वेशन फाइंड किया है, ये √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हेरन्स फॉर्मूला ही यूज़ किया तो हमें फाइनल आंसर ये मिला। देयरफॉर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड की वैल्यू है 60 इंटू 60, तो 15 और ये कैंसिल हो गया, 15 इंटू 6 90, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरी आंसर मिला हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, slightly different questions, so using a small question, time using 4 और टाइम लिमिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पहले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉज 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, A, B एंड C। 2 साइड दी गई है यहाँ पे, 1 साइड इज 18 सेंटीमीटर, थर्ड साइड फाइंड करनी है और पेरीमीटर आपको दिया गया है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर AB प्लस BC प्लस AC is equal to perimeter of triangle ABC। 18 प्लस 10 प्लस AC, बाकी अभी फाइंड करना, और 42 आपको दिया गया है। तो 18 प्लस 10 28 प्लस AC is equal to 48, therefore AC, तो उसका आंसर हमें मिलता है 14 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड मिल गई हमें, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों साइड मिल गई। अब तीनों साइड से हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, S माइनस A S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2।
तो एक 18 की साइड है, एक 10 की साइड है और एक हमने फाइंड की 14 की, और डिवाइड बाई 2 करना है। तो सभी का पेरीमीटर हमें पता है, ये तो ए स्टेप कर सकते हो या तो फिर डायरेक्ट स्टेप। कौन सा डायरेक्ट स्टेप? तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है आपको 42, देयरफॉर एस इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। सो 21 सेंटीमीटर का आंसर आपको मिल गया। तो एस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो अब इक्वेशन में अप्लाई करते हैं, तो 21 आ गया। 21 में से फर्स्ट साइड को माइनस करेंगे, एक 18 की साइड, दूसरी जो साइड है वो 10 की साइड है, और तीसरी जो साइड है वो 14 की साइड है। तो ये हो गई। अब 21 इंटू 21 माइनस 18, इट मीन्स 3, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11, एंड लास्ट 7। उसकी फैक्टर करेंगे 21 के, 7 3 से 21, और ये 3 एज इट इज है, 11 एज इट इज है, 7 एज इट इज है। तो यहाँ पे देखो 7 और 7 2 टाइम है, 3 और 3 2 टाइम है, यानी कि स्क्वायर है, तो बाहर निकालेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 1 टाइम हो गया, और अंदर बाकी रहा 11। सो आंसर आया हमारा 21/11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, गिवन ट्राइंगल। तो इस तरीके से ये सम यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये 2 क्वेश्चंस हमने देखे और हेरन्स फॉर्मूला देखा। बाकी के जो रिमेन्स 3 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। इक्वेशन चैप्टर इजी है, ओनली 2 एक्सरसाइज है, 12.1 एंड 12.2। इजी क्वेश्चन से आपको सॉल्व करने हैं और आप मैक्स गेन और ये चैप्टर में स्कोर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।